Dear students, Assalamu alaikum rahmatullah. We are in class 11th, subject history, and today's topic is the temples and the role of kings. In Mesopotamia, the temples and the role of kings. What was the role of temples, how the temples were built, and what was the role of rulers, kings during their rule and the early Mesopotamian civilization. First of all, the life was started, or the settlements were started during the 5000 BC onwards. The early settlements began to develop in South Mesopotamia 5000 BC onwards. یعنی زندگی کی شروعات جو وہاں سیٹلمنٹ جو تھے ارلی جو لائف جو شروعات ہوئی تھی دیٹ واز اسپیشلی ان ساؤتھ میسوپوٹیمین ایریاز ریجنز اینڈ پیریڈ واز the 5000 BC onwards. Temples were built at selected spots in villages. یعنی جو مندر جو تھے وہ مخصوص جگہوں پر بنائے جا رہے تھے، چاہے وہ گاؤں کے درمیان میں تھے، کسی مخصوص جگہ پر مخصوص جگہ کو مینشن کرنے کے بعد وہاں پر مندر بنائے جاتے تھے. اینڈ فرسٹ the temples were small shrines and they were built with the unbaked bricks. یعنی مندر جو تھے، ٹیمپلز جو تھے وہ پہل جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے ریلیجس پلیسز تھے، چھوٹے چھوٹے مندر بنائے جاتے تھے. اینڈ دیٹ ٹو ویئر ان بیکڈ برکس. جو ان بیکڈ آپ نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ جنہیں پختہ نہیں کیا جاتا تھا، ان جو اینٹیں تھی پختہ کی ہوئی نہیں تھی بلکہ وہ خام اینٹیں تھی، انہی اینٹوں کے ذریعے سے وہ مندر ٹیمپلز بنائے جاتے تھے. And this was the early stage for the construction of temples. Third, the temples were residences of various gods and goddesses. کہا جاتا ہے کہ جو مندر جو تھے وہ بھگوانوں کے یا اپنے جو ان کے ہاں ریلیجس جن کے وہ پوجا کیا کرتے تھے ان کی وہ ریزیڈنس بھی تھی. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر بھگوان ریزائڈ کرتے ہیں. The temples were the residences of various goddesses, especially the god of love or the god of war. ہم نے عرق میں بھی پائے ہیں، ماری میں بھی پائے ہیں. Those temples were with the various gods and goddesses. They were denoted as the god of war and the goddesses of love. یہ اسی کے نام سے بہت سے ٹیمپلز بنائے جاتے تھے اور ان پہ انہی کے نام سے، اور وہ ان کے کہیں کبھی کبھار ان کو جہیں لڑائی لڑنے کے لیے، کبھی فتوحات کے لیے، کبھی محبت کے لیے ٹورڈز دیئر گاڈ، وہ ان کے ہاں مخصوص گاڈ بھی تھے. دیز گاڈس وائر دا فوکس آف ورشپ. یعنی جو اگر مندر میں جانے کے لیے کوئی جگہ تھی، مندر میں جانے کے لیے کوئی جو فوکس تھا، جو سب سے امپورٹنٹ جو تھی وہ اس مندر میں وہ تو گاڈ تھا، اور گاڈ کے محبت میں یا گاڈ کے لو میں، گاڈ کی ورشپ کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے وہ اپنے جاتے تھے اپنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے. دیٹ واز دا گاڈ. یعنی گاڈ ہی مرکزی حیثیت رکھتے تھے مندر میں، اسی کے حوالے سے لوگ جایا کرتے تھے ٹو پلیز دا گاڈ اینڈ to have a respect, love for their gods and goddesses. And they used to go with grains. وہ اس طرح نہیں جاتے تھے مندر، اس طرح آج بھی مندروں میں جاتے ہیں، پھول لے کر جاتے ہیں، مالا لے کر جاتے ہیں، کبھی کبھار جو مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں، جو بھی جس کے ہاں خوشی کے حوالے سے to please the God, to have their respect and regard for their gods and goddesses. And they too were going to the temples with the grains. وہ اس وقت جو ان کے پاس اویلیبل تھا اسی کے حوالے سے وہ جاتے تھے. آج مٹھائیاں ہیں، اس وقت گرینز تھے
اور कर्ड था एंड फिश एटसेट्रा, यानी वो मंदिर में ग्रेन्स लेकर जाते थे, कर्ड लेकर जाते थे, फिश लेकर जाते थे, जो उसको उस वक्त उनको अवेलेबल था इन ऑर्डर टू प्लीज दियर गॉड्स एंड गॉडेसेस. Fifth one, the temples thus gradually developed its activities, यानी मंदिरों में, टेम्पल्स में आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज डेवलप होती गई, बढ़ती गई. यानी अब वर्शिप ही नहीं बल्कि वर्शिप के अलावा भी मंदिरों में काम काज शुरू हुआ, लोगों का आना जाना हुआ, लोगों के आने और जाने से वहाँ एक्टिविटीज बढ़ गई. अब वो एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज एंड बिगेन मेन अर्बन इंस्टीट्यूशंस, यानी जो उस वक्त के जो शहरी या बल्दियाती या कस्बा जाती जो उस वक्त के मराकज थे वो तो मंदिर ही थे, क्योंकि मंदिरों में सब कुछ अवेलेबल था. जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिदों में मकतब भी हुआ करते थे, मीटिंग्स भी हुआ करते थे, जुम्मा भी होता है, इस तरह लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है. जो भी मोहल्ले का, गाँवों का, इलाके का जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते थे वो मस्जिदें हुआ. इसी तरह उस वक्त भी अपने वो मंदिर ही जो थे वही इंस्टीट्यूशन थे, अर्बन इंस्टीट्यूशन थे, मराकज थे. लोगों की एक्टिविटीज़ के बारे में, लोगों के मशवरे के बारे में, अगर कभी बादशाह को भी खुश करना होता था, बादशाह को भी अपने सबाटने से बात करनी है, दैट टू वाज यूज्ड. Temples were the centers, temples were the main institutions or the urban institutions at that time. The god was the theoretical owners of the agricultural field. वो माना जाता है कि जो भगवान जो था, गॉड जो था, दैट वाज थ्योरेटिकल ओनर, यानी असल में ज़मीन जो थी, असल में जो ज़राअत जो था, असल में जो देयर एनिमल्स हर्ड्स जो थे, स्पेशली देयर फिशरीज, यानी जो भी उस वक्त अवेलेबल था उनको, वो समझा जाता था कि ये भगवान ही का असल में है, लेकिन हमारे पास अमानतन है, हमारे पास वक्ती तौर है, असल इसका मालिक जो है भगवान है. जिस तरह हमारे यहाँ असल में इस पूरी जो कायनात है, पूरी जो दुनिया है, पूरी जो ज़मीन है, पूरी जो फील्ड है, सब अल्लाह ही का है. इसी तरह वो भी समझते थे कि द रियल अथॉरिटी, द रियल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर, रियल फील्ड्स, द रियल ओनर ऑफ द एनिमल हर्ड्स और द फिशरीज वाज द गॉड्स. उन्हें भी वो समझते थे कि प्रैक्टिकल पर्पस उनके पास ज़मीन थी, प्रैक्टिकल पर्पस उनके हाँ वो जानवर वगैरह थे या फिशरीज या जो भी जो नेचुरल और आर्टिफिशियल जो भी उनके पास अवेलेबल था वो उनका अपना था, लेकिन असल में जो था वो समझते थे ये दरअसल गॉड ही का दिया हुआ है, ये असली गॉड ही का है, लिहाजा वन शुड प्लीज द गॉड विद द एनिमल्स. जो उनके पास अवेलेबल था उसको प्लीज करने के लिए उन्हीं से वो मदद लिया करते थे. दैट वाज द क्योंकि ऐसे जो शवाहिद मौजूद हैं कि वो जाया करते थे, उनके यहाँ उस वक्त ये अवेलेबल था, जो खुश करने के लिए वो जाते थे, राशन वगैरह भी उस वक्त अवेलेबल था, और क्या करते थे. नेक्स्ट, द रोल ऑफ किंग्स. अब सेकंड पार्ट है हमारा, व्हाट वाज द रोल ऑफ रूलर्स, व्हाट वाज द रोल ऑफ किंग्स टू regarding the temples, regarding the construction of temples, regarding the subordinates to please the gods and goddesses. वो बादशाह उस वक्त के जो रूलर थे उनका क्या रोल था, क्या वो इस हवाले से में लोगों की इमदाद के साथ साथ भगवान को खुश करने के लिए उनका क्या रोल था, वो किस तरह पेश आते थे टेम्पल्स में और गॉड्स के साथ. In wars, the successful chiefs distributing the wealth and prisoners as their gods and servants. कहा जाता है कि जो भी सक्सेसफुल, जो भी जीतने वाले बादशाह थे, जो भी जीतने वाले चीफ्स थे, रूलर्स थे, किंग्स थे, वो जब जीत कर आते थे अपनी खुशी में, फतूहात की खुशी में, जीतने की खुशी में, फिर वो उस वक्त जो भी अवेलेबल था उनके पास वेल्थ थी, जो उनके पास बूटी थी, जो उनके पास काइंड ऑफ वो जो भी अवेलेबल उनके पास था, वो अपने गार्ड को उस वक्त के जो भी उनके लोकल सबॉर्डिनेट्स के लोगों के जो अवाम के जो उस वक्त के मंदिर थे, टेम्पल्स थे, वहाँ जाया करते थे लोगों को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, लोगों की एतमाद हासिल करने के लिए उस वहाँ मंदिरों में जाया करते थे, और वह वहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूट करते थे वेल्थ, वो मंदिर को बनाने के हवाले से, टू प्लीज देयर गॉड्स एंड टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल्स, दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ एंड आल्सो द प्रिजनर्स एज देयर गॉड्स। जो वो वार कैप्टिव्स में जो लाते थे, वो कैदी जो लाते थे, उन कैदियों को उन मंदिरों में रखते थे एज गॉड्स एंड सर्वेंट्स। ये उनका एक और मामला था। एक तो वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते थे टू द पर्टिकुलर टेम्पल, to please the particular god, and also to serve the temple, to serve the this authority. They used to have the war captives as their gods and servants. यानी जो कैदी जो उनको बुलाते थे, जो हारने वालों इलाकों से, हारने वाले रूलर से, वहाँ के जो वार कैप्टिव थे, जो कैदी लाते थे, वो वहाँ पर इन मंदिरों में एज गॉड्स रखते थे, एज सर्वेंट्स रखते थे। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट टू एज द रूल ऑफ द रूलर्स, स्पेशली फॉर द construction or for to please the gods and temples. Second, the war captives and local people were put to work for the temples and for the rulers. यानी जो कैदी जो थे वो मंदिरों में काम करते थे। कैदियों के अलावा जो लोकल पीपल थे, उस मंदिर के हवाले से उसके जो लोकलिटी में रहने वाले जो लोग थे, उसके मानने वाले जो लोग थे, वो भी वहां पर काम करते थे। एंड इसमें एक तो वो अपने खुशी से काम करते थे, दूसरे वो इन ऑर्डर टू प्लीज द रूलर, यानी बादशाह के कहने पर, बादशाह को खुश करने के लिए भी वो मंदिरों में काम करते थे। एंड वो एक और बात है कि दे यूज्ड टू सर्व, दे यूज्ड टू वर्क इन द टेम्पल्स, दैट मीन्स दे वर विद द ऑर्डर ऑफ रूलर, यानी टू प्लीज द रूलर दे यूज्ड टू वर्क इन टेम्पल्स। यानी ये समझा जाता था कि बादशाह के लिए मंदिरों में काम करना है, बादशाह के लिए मंदिरों में जो जाकर वहां पर वो जो भी एक्टिविटीज हो, जो भी काम अवेलेबल है, वो करना है टू प्लीज द रूलर एंड टू प्लीज द गॉड, राइट। तो नेक्स्ट, द थर्ड वन, द एग्रीकल्चरल टैक्स वाज कंपल्सरी, यानी जो जमीन पे जो मालिया था, जमीन पे जो टैक्स था, जिस तरह आज भी रेवेन्यू टैक्स है, एग्रीकल्चरल टैक्स है, हॉर्टिकल्चर टैक्स है, इसी तरह उस वक्त का जो ज़राअत पे जो टैक्स था, ज़राअत पे जो उस वक्त का जो टैक्स था, दैट वाज कंपल्सरी, वो तो देना ही देना था। बट वर्कर्स वायर पेड थ्रू राशन, यानी जो मंदिरों में काम करते थे, जो इसके अलावा बादशाह के लिए काम करते थे, बादशाह के कहने पे काम करते थे, उनको तो एग्रीकल्चर टैक्स देना ही देना था, बट दे वायर पेड थ्रू द राशन। अब उन्हें दे वर नॉट पेड इन कैश, बट दे वर पेड इन काइंड। उनको उस वक्त का गला जो भी अवेलेबल था, उन्हें उसी राशन के रूप में मुआवजा दिया जाता था। बिकॉज वी हैव द अवेलेबल सोर्सेज, दैट वी हैव द लिस्ट्स ऑफ द पीपल हु वर पेड एज राशन। उनके यहाँ जो लिस्ट भी अवेलेबल है, किस हिसाब से राशन दी जाती थी। लिस्ट्स वेयर हैड बीन फाउंड विद द नेम्स, यानी किनको राशन दी जाती थी और कितना राशन दिया जाता था। ये लिस्ट अवेलेबल हैं इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के हवाले से। आर्कियोलॉजिस्ट ने वो उस चीज को पाया है वहां पर। और इतना नहीं कि हाउ मच क्वांटिटी दे वर पेड, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वर पेड विद द ऑयल अलॉटेड टू देम, यानी उनको कितना तेल दिया जाता था, उनको कितना राशन दिया जाता था, उनको कितने कपड़े दिए जाते थे और किसको दिया जाता था। इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट था, इनके बाज़ाब्ता एक मुरत्तब राशन जो दी जाती थी, उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर फेहरिस्त अवेलेबल था उस वक्त। दैट इज अवेलेबल इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यानी इट मीन्स द पीपल वर पेड विद द राशन, दे वर पेड एज in kind as clothes, they were paid as the oil, they were paid grains, and the list of the people with name is available there, right? The next is it is found that one temple took 1500 men working, यानी एक मंदिर को बनाने में के लिए 1500 अफराद की जरूरत थी, जो they were used to work 10 hours a day, यानी एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक मंदिर बनाने में 5 साल लगते थे। यानी एक मंदिर बनाने में अगर 1500 आदमी
کام کریں گے وہ بھی ایک دن میں 10 گھنٹے کام کریں گے تو کم سے کم 5 سال لگتے تھے ٹو بلڈ اے ٹیمپل یعنی ایک مندر بنانے میں 1500 افراد کام کرتے ہوئے وہ کم سے کم ایک دن میں 10 گھنٹے کام کریں گے تو 5 سال لگتے تھے ایک مندر بنانے میں. دس واز سم ہاؤ ریگارڈنگ دا رول آف رولرس اینڈ دا کنگس or the role of the kings or the role of the rulers regarding their temples, regarding the people they used to have during the Mesopotamian civilization, especially in South Mesopotamia. Thank you. We will take the next class in next day.